Hello student, in this video we will talk about the classification of animals. Okay, now first of all I told you that there are certain characteristic on which we can classify the organism. तो उसके बेसिस पर हम लोग सिंपली क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है कि किस किस लेवल पर क्लासिफिकेशन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्योंकि हम लोग ले रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, तो दैट इज किंगडम एनिमेलिया. नाउ किंगडम एनिमेलिया को हम डिवाइड करते हैं बेटा, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर तो है नहीं, मल्टी सेल्यूलर है. ना द मल्टी सेल्यूलर किंगडम एनिमेलिया में हम सिंपली डिवाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द मोड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, यानी कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है. तो वेदर दे आर हैविंग द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर फर्स्ट आइदर इट इज़ द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गन system level of organization. Now when we talk about the cellular level of organization, तो only one phylum है ना, one phylum is there and that is called as Porifera. Now later on, when if the organism is multicellular and either having the tissue level or the organ system level of organization, तो next we can divide into two categories on the basis of their symmetry. तो next हम लोग जो divide करेंगे वो किस basis पर divide करेंगे बेटा, on the basis of symmetry. Okay, कि what type of the symmetry they are having. तो on the basis of the symmetry they can be divided into two categories. One is called as radial symmetry. As I told you, radial symmetry में if we will cut the organism through any plane passing through the center, it will divide into two equal half, or it can be the bilateral symmetry. Bilateral symmetry में I told you that if the organism can be divided into two half only by dividing it from a one plane, एक particular plane से divide करते हैं, then only it will divide into two half. Now radial symmetry में अगर हम लोग example लेते हैं तो then radial symmetry में जो organism आते हैं that can be सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेट्स जो होते हैं बेटा, सीलेंट्रेटा आर हैविंग द रेडियल सिमेट्री एज वेल एज अनदर इज द टेनोफोरा. टेनोफोरा बेटा यहाँ पे सी साइलेंट है, TENOPHORA से प्रोनाउंसिएशन होगा, सी इज साइलेंट, तो टेनोफोरा. नाउ वी कम ऑन टू द बायलेटरल सिमेट्री. नाउ द बायलेटरल सिमेट्री नेक्स्ट जो हम कैटेगराइज करते हैं वो कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम या बॉडी कैविटी. तो नेक्स्ट किस बेसिस पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. वन इज द एसीलोमेट, सेकेंड इज pseudo coelomate and third is the coelomate. That I have already told you about the acoelomate, when there is a no body cavity present between the body wall and the gut. If the body cavity is present between the gut and the body wall but those cavities are just pinched off, है ना, that is called as pseudo coelomate. And coelomate means the body cavity is present between the gut
and the body wall, and which is lined both internally as well as externally by the mesoderm. If it is lined by mesoderm and the cavity is present between the gut and the body wall, then it is called as coelomate. Okay, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ए सीलोमेट में जो ऑर्गेनिजम्स या फाइलम बिलोंग करता है दैट इज प्लेटाइहेल्मिन्थ, PLATYHELMINTH. प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है दैट इज एसीलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी. स्यूडोसीलोमेट में आते हैं बेटा एस्केलमिन्थ्स, ASCHELMINTHES, एस्केलमिन्थ्स. और जो ट्रू सीलोम्स है उसमें वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर देयर, हम उनको डिवाइड कर देते हैं. एस्केलमिन्थिस के बाद में एनालिडा, then orthopoda, then mollusca, echinodermata, hemichordata, and last is the chordata. All these organisms belongs to the coelomate. कौन कौन से हो गए बेटा सीलोमेट में? एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा as well as the chordata. All these belongs to coelomate. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे किया गया है बेटा? फर्स्ट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, second on the basis of symmetry, third is on the basis of the coelom, and last all these are called as the phylums. ये सारे क्या हैं बेटा? phylums. Okay, so now we will we will see the structure and the function, habitat and various characteristic feature of all these phylum. तो कितने phylum हो गए बेटा? One is Porifera, Coelenterata, third Ctenophora, fourth Platyhelminths, fifth Aschelminths, Annelida sixth, Orthopoda seventh, Mollusca eighth, Echinodermata ninth, Hemichordata 10th and Chordata 11th. We have to study only 11 phylum. ऐसा नहीं है कि 11 phylum ही है, लेकिन हमें केवल इस स्टेज में 11th स्टैंडर्ड में we have to study about only these 11 phylum. तो first we will take the phylum Porifera. Okay. Now Porifera, as the name indicate, pori means pore. तो पोर बियरिंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द पोरीफेरा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोरीफेरा. तो पोरीफेरा मीन्स दे आर द पोर बियरिंग, जिन पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस बेटा इसका कॉमन नेम है. ठीक है. नाउ वी कम ऑन टू दैट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. इनके अगर हम लोग जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरन्स के, तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ whenever we have to do the general characteristic, first of all we have to take its habitat. Habitat means the place where it lives, है ना. तो most of the porifera, most of them are marine. अधिकतर क्या है बेटा? marine है. but a few of them live in fresh water. सबसे पहला चीज़ तो है कि हैबिटेट कैसा है बेटा? एक्वाटिक. एक्वाटिक मीन्स दे लिव इन वाटर.
अब वाटर में भी कहाँ रहते हैं, वेदर दे आर लिव इन द सी, मैराइन है, या फिर वो फ्रेश वाटर है। एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल इफ यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म, दोज पोरिफेरा विच लिव इन द मैराइन, तो द एग्जाम्पल विल बी यूस्पोंजिया, or if we take the example of the fresh water, then we can take the example स्पॉन्जिला। क्या ले सकते हैं बेटा, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला जो होता है बेटा, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यूस्पोंजिया और द साइकन, दैट इज द मैराइन स्पॉन्ज। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम लेंगे बेटा, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिवीज़न ही हम लोगों ने इन्हीं बेसिस पे किया था। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दे आर हैविंग द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। Now third thing, we are coming on to symmetry, कि symmetry किस तरह की है। तो as I told you, most of the sponges, है ना, यानी most of the sponges